friends, today we'll discuss about the vectors. इस वर्ल्ड के अंदर जितना फिजिकल क्वांटिटीज है, मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज है, देयर कुड बी सब डिवाइडेड इनटू स्केलर एंड वेक्टर्स. यानी कुछ फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटी जितने हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो पैरामीटर है वो मेजरेबल अगर है, देन इट कुड बी डिवाइडेड इनटू one is the directionless quantity and another have to define with direction. सपोज मैं कुछ क्वांटिटी बताता हूँ आपको, फिजिकल क्वांटिटी. मान लीजिए स्पीड है, वेलोसिटी है, लेंथ है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, मोमेंटम है, फोर्स है, मास है, वेट है, टाइम है, टेम्परेचर है, अब देखिए मैं दो सेट ऑफ पैरामीटर लिखा है, टू सेट्स ऑफ पैरामीटर. ये सारे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट का कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन को डिफाइन कर रहा है मेजरेबल क्वांटिटीज में. अब ये जो सेट ऑफ पैरामीटर है, ये जो सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट है, लाइक स्पीड, लेंथ, डिस्टेंस, मास, टाइम, टेम्परेचर एंड सो ऑन, एरिया, वॉल्यूम. All these are no need to define this direction of anything. स्पीड किस तरह की, किधर का स्पीड, कौन सी डायरेक्शन वाला स्पीड, नो नीड टू डिफाइन. लेंथ ऑल्सो, कितना लेंथ है, साउथ की तरफ जो जितना भी लेंथ होगा, नॉर्थ की तरफ इसका पर्टिकुलर लेंथ, मान लो दिस इज द लेंथ ऑफ दिस वन, दिस पेन. सो यू नीड नॉट टू मेंशन दिस लेंथ इज टुवर्ड्स नॉर्थ और साउथ और अप और डाउन, because length is directionless quantity. Similarly, distance, mass, time, temperature, area, volume, these are the directionless, and we call this quantity as a scalar quantity. The other set of quantity like velocity, displacement, momentum, force, weight, and so on, torque. So these set of parameters you need to displace. If you want to define your particle position, displace. My book was here and it was displaced somewhere else. So displacement is actually in which direction my book's actually misplaced. Or some car is moving, in a particular direction, then you have to say the car after 2 hours, which direction it is to be displaced. You cannot say the car is moved away, so this will be distance. But once you set the displacement, कि कितना displace हुआ है, then you have to mention the direction. Suppose rain is dropping. So this is the velocity. So you have to mention whether it is perpendicularly down or with some angle. Suppose one boat is swimming in water, so you have to mention whether this is going towards the stream, along the stream or upward the stream. So these are the quantities where we need to mention the direction. So we call it the vectors. So vector के अंदर there are two things. क्या क्या रहेगा? One is magnitude or value of the variables, measurables plus direction. Whereas in scalar quantity we have only a value or magnitude of which we measure the actual
amount of containment of any variables parameters. तो वेक्टर्स के अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, स्केलर के अंदर ओनली वैल्यू और मैग्नीट्यूड. ओके दोस्त, नाउ विल मूव तो अब जो हमारी काइनेमेटिक्स की पार्ट है, उसकी काइनेमेटिक्स 2D में हम डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर वेलोसिटी कैसे रिलेटेड या वेक्टर्स कैसे रिलेटेड. जैसे हमने देखा भाई, इनिशियली 1D के अंदर हमने मोशन का जो पार्टिकल के मूवमेंट हमने डिस्कस किया, दैट वाज only the number line because the direction was fixed either in this way or that way. तो पर्टिकुलर सेट ऑफ टाइम में वो मूव कर रहा था. पर्टिकुलर सेट ऑफ टाइम में वो ऐसे मूव कर रहा था. ठीक है, तो 1D के अंदर only we have allowed this particle to move in a straight line, only in a straight line. It could be a curved line, but we have discussed in a straight line motion of 1D. So particle only line function के अंदर ही वो move कर सकता है. So only one axis was sufficient to describe this motion and number line. Suppose this is 0, 0. This is 0, 0 position. Only 0, no 0, 0. Y-axis, we don't need to describe y-axis. This motion, we don't need the y-axis to describe this motion. यानी ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, यूनिडायरेक्शन में जा रहा था. यूनिडायरेक्शन इन द सेंस, if it is a scalar quantity, you just measure, add and subtract because the same direction. हमने देखा था वेक्टर के अंदर क्या देखा था कि डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड होगा. नाउ इफ इट इज द डायरेक्शन इज द सेम, इफ द डायरेक्शन इज द सेम, ओके, लेट्स हैव एन एग्जांपल. आप मान लो बोर्डिंग कर रहे हैं. ओके, बोर्डिंग इज 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर. इन क्लास 10 यू हैव ऑलरेडी वर्कड आउट, आई थिंक यू रिमेंबर नाउ. सो स्टिल वाटर के अंदर दिस बोट स्पीड इज 15 km per hour and the stream speed current 5 km per hour. So the effective speed of this boat will be how much? क्योंकि ये भी जा रहा है, ये भी धक्का मार रहा है. So this will be 15 plus 5, that is 20 km per hour. This is a line function. If we imagine not like this zigzag, if the movement is straight line, then we can think like this. Or if the board is moving this direction 15 km per hour, but now current direction is this side, that means it is going upstream. The board is rowing upstream. अपस्ट्रीम में अगर जाता है तो इन केस में क्या हो जाएगा, उसकी एग्निस्ट में जा रहा है. सो इट विल बी द ओनली सिंपल माइनस एंड इट विल बी 10 किलोमीटर पर आवर. सो लाइन फंक्शन के अंदर आप देख रहे हैं 1D मोशन के अंदर इट इज ओनली द एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ऑफ द फैक्टर्स बिकॉज इट इज द ओनली वन नंबर लाइन. इफ इट इज द सेम डायरेक्शन इट विल ऐड द मैग्नीट्यूड, इफ ऑपोजिट डायरेक्शन इट विल रिड्यूस द मैग्नीट्यूड. बट इन केस ऑफ 2D के अंदर क्या हो जाएगा, टू डी मोशन के अंदर वी नीड टू डिफाइन दी मोशन और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन 2 एक्सिस विथ रेस्पेक्ट टू 2 एक्सिस. कैसे, मान लीजिए फॉर दिस वन एग्जाम्पल, फॉर पर्टिकुलर टाइम पोजिशन, सपोज वन व्हेन आई एम राइटिंग समथिंग, so maybe in particular time my pen is here
and after certain time it may be here, it may be here, it may be here, like this. So the movement or position is continuously changing with respect to this one and this one, x-axis and y-axis. I cannot define the position of this one, my pen position, my pen writing position in for with respect to a particular or only one axis. So this type of motion, position, vectors will be called two-dimensional. Actually क्या है? With a practical example, I will quote you. Practical example के साथ अगर हम quote करते हैं, यानी आप ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, now the object is moving actually not in a straight line but in a curved line. So for this particular curved line motion और पोजीशन चेंजिंग हम उसको डिफाइन करेंगे कि भाई साहब it is changing is continuously, the course of path is changing from this axis, whatever your axis is the reference one of the observer. Observer को अपने सहूलियत के हिसाब से as per his own easiness it can define the axis. Now the particle is maybe changing continuously. Distance of this one, earlier maybe position was this. Now see, it is not only changing this distance of this axis, but it is somewhere also changing, even in the 0 position here, इस axis के अंदर भी देखिए, this is the this axis, this measurement is the x-axis. If it is take it x, this is y, so this is x1, this is x2, this is x3. Now for this one, initial position A, it was the y1, that means it is the y1. Then this is y2. This means y2 is somewhere else here. And it is y3. So this is y3. So what is happening actually? What I mean to say, this is the graph of this one. So position change के साथ particular object is continuously changing its reference with respect to x axis position and y axis position. और इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर. और देखिए ये 2D में हर वक्त it is continuously changing its own position. My pen is continuously changing its position with respect to this axis and this axis. So it is a 2D motion. It is a 2D motion because it is having in a plane. ये प्लेन के अंदर काम कर रहा है, इसलिए 2D मोशन को मोशन इन प्लेन भी हम बोलते हैं. ठीक है, मान लो कार इज मूविंग ऑन द ग्राउंड, सो ग्राउंड इटसेल्फ इज ए प्लेन. सो इट इज अ 2D मोशन. 3D मोशन कैसा है? लेट्स हैव वन एग्जांपल कोट वन. 3D मोशन ऐसे है कि जमीन के अंदर चल रहा है कार, सो इट्स अ 2D मोशन, x y as per the observer. Now if one object, flying object, now think of the flying object, it is not flying, so it needs a ground, x axis, y axis, and also continuously the wasp or aeroplane or whatever you think on which it is flying. So x axis, y axis, also height is also continuously changing somewhere else like this. So maybe this. So it is continuously changing the distance from x, distance from y, also distance from z. 3-dimensional, 3 axis. We say it is 3 axis, 3-dimensional movement. Okay, this is x, this is y, this is any flying object or space. मोशन इन स्पेस, कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस में मोशन करता है तो इसको हम बोलेंगे 3D ऑब्जेक्ट. अब मैं छोटा सा एग्जांपल फिर कोट करता हूँ. 1D, if I drop this one, it will simply follow this line function. This is the 1D motion. 1D motion earlier I tested. And if I throw this one, so it will follow a projectile motion.
इट विल फॉलो द प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये एक प्लेन को फॉलो करेगा। ये प्लेन को ऐसे करके करूंगा तो एक प्लेन को फॉलो करेगा, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं इसको, हम पढ़ेंगे। एंड 3D इज कंटिन्यूअसली स्पेस मूवमेंट, स्पेस मूवमेंट इन स्पेस लाइक दिस वन, ओके, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया। अब पोजीशन वेक्टर को थोड़ा सा मैं और क्लैरिफाई करता हूं, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन को हम क्यों वेक्टर बोल रहे हैं? व्हाई वी से पोजीशन इज ए वेक्टर? सी 2D के अंदर जैसे हमने बोला कि ऑब्जेक्ट कार्क पाथ में चल रहा है। सपोज वन ऑब्जेक्ट इज जस्ट मूविंग लाइक दिस, दिस इज 0 पॉइंट, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज -x, दिस इज -y, okay, so this is it. Now the object for a particular moment position was here, this is A, and defined after this is B. It is changing its the path, it is just moving, so it's the position one. This is the position time graph, position में भी position time graph के अंदर हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। टाइम के साथ साथ वो अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं। अब देखिए इनिशियल पोजीशन इट वाज ए, सो जो पोजीशन है, पहले तो व्हाई पोजीशन इज ए वेक्टर पोजीशन, इफ यू वांट टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ any particle, then you need to mention, you have to mention the direction where it is actually standing, where it is actually standing. Suppose if A is there, so I have to say where is A? Towards north, or in first quadrant. If you have the Cartesian plane, the first quadrant like this, so to mention this one. Why? Whether this side, up, down, my front, my back, my plane is in front of me or back. So position is always a vector. Now एक particle A पोजीशन में था, now B पोजीशन में मूव किया, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें ये पोजीशन तो डिफाइन हो गया, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो शुरू में इनिशियली जो ऑब्जेक्ट वाज फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, कहाँ पे था? सबसे दिस वन है पोजीशन वेक्टर R, पोजीशन वेक्टर R। अब वो सेकंड पोजीशन में जब जाता है, उसकी पोजीशन वेक्टर ऑफ रेफरेंस पॉइंट कहां से है ना? एक्चुअली जो है R1 वेक्टर, वेक्टर का साइन जो है, वेक्टर का साइन हम कैसे करते हैं? वेक्टर को साइन, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको बैक में चले जाता हूँ। वेक्टर का साइन जो है, वेक्टर का साइन हम जनरली या तो बोल्ड लेटर में लिखेंगे, या एरो देंगे उसके ऊपर वेक्टर को रिप्रेस करने के लिए, दिस इज द वेक्टर, बी इज द वेक्टर, और सिंपली वी पुट द बार, so these are the symbols of vector, right? So initial position vector, it was from reference, this one R, and from B फाइनल पोजीशन B इट वाज द R डॉट, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सो दिस वेक्टर देखिए, यहाँ पे पोजीशन किधर था? डायरेक्शन दिस वन, द पोजीशन वाज डायरेक्शन दिस वन, रेफरेंस पॉइंट है इस डायरेक्शन में इनिशियल पोजीशन पर, एंड फाइनल पोजीशन को अगर कंसीडर करें तो रेफरेंस से दिस डायरेक्शन में, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट इज द AB शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यू नो वी हैव रीड आउट the displacement is the shortest distance. Displacement is the shortest distance. So EB equal to displacement. अब AB also a vector. It needs to mention a direction. AB also direction है, कौन सी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है देखिए। So it needs a displacement, direction and vector sign. So इसके अंदर आप देखिए, आप this is basically nothing but the R dot vector minus R vector.
So displacement vector D, if I say this is D, so D is equal to r dot final position minus initial position. Remember here all these vectors, addition, subtraction, it is not as the numerical or arithmetical addition subtraction, because ये वेक्टर का addition subtraction बोलते हैं हम, later on we are coming. It is not that only the magnitude is adding or subtracting. We need to consider the direction also. Once you neutralize the direction, ये देखिए डायरेक्शन अलग अलग है, हम इसको ऐड नहीं कर सकते. मान लो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड y एंड दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ x1 एंड y1. ठीक है, दिस इज अ टू डायमेंशन. सो इसको तुम सिंपली डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. यू कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट दिस. यू हैव टू कंसीडर द एंगल बिटवीन दीज आल्सो और एंगल बिटवीन दिस आल्सो, फिर जाके आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकेगा. We'll come to later on. So this is the displacement. This is delta equal to or displacement equal to final vector minus initial vector. ठीक है. अब अगला जो हम चलते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर. ये पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको समझ में आ रहा है. अब हम टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. वेक्टर्स की जो है क्राइटेरिया हमने क्या देखा. वन इज द वैल्यू और मैग्नीट्यूड. अदर इज द डायरेक्शन. तो ये दोनों पैरामीटर के बेस में वी कैन कंपेयर टू वेक्टर्स. यो कैसा वेक्टर्स है. इट इज द एक्चुअली टाइप्स ऑफ वेक्टर वी आर कंपैरेटिव वेक्टर वन टू अदर. सपोज एक वेक्टर ए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, सम वेक्टर ए and some other vector b. Now मान लो mod a वेक्टर ऑफ mod a एंड mod b, द वैल्यू ऑफ वेक्टर 2, ये दोनों वेक्टर का वैल्यू ले सकते हैं. और डायरेक्शन दोनों दो पैरामीटर है. इनके पैरामीटर कितना है, ये दोनों के mod वैल्यू कितना है. डिपेंडिंग अपॉन दिस वी विल डिफाइन डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर. सपोज इन दिस केस अगर ये दोनों वेक्टर तो सेम है, यानी मैग्नीट्यूड अगर दोनों सेम है and the direction also same, magnitude of this vector is same, यानी ये इतना लंबा सेम अमाउंट मैग्नीट्यूड का हम जनरली वेक्टर के रेशियो के हिसाब से उसकी मैग्नीट्यूड को हम डिफाइन करते हैं. इफ कंपैरेटिवली a is b equal to b magnitude, so the length of this also we also do the ratio also by our drawing also the same ratio. So the magnitude a and b is the same and direction is same, and we'll say this will be equal vector. We'll say this is equal vector. We'll say this is equal vector. ठीक है. अब डायरेक्शन सेम है, मतलब ये दोनों अभी तो ये है, तो इक्वल वेक्टर अगर ए बी है तो उस केस में हम क्या कैसे लिखेंगे, यानी ये दोनों ऐसा हो जाएगा. अगर ऐसे हैं तो हम इसको इक्वल वेक्टर करेंगे, बिकॉज इज द डायरेक्शन सेम मींस पैरेलल, वैल्यू सेम, सो दिस इज इक्वल वेक्टर. साइन आल्सो सेम, डायरेक्शन सेम मींस साइन सेम. अब मान लीजिए वैल्यू तो सेम है, अब डायरेक्शन सेम नहीं है, पैरेलल है बट ऑपोजिट है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, उस केस में इसको बोलेंगे ऑपोजिट वेक्टर. ऑपोजिट वेक्टर. ऑपोजिट वेक्टर यानी क्या हो गया इस केस में, नाउ दिस केस बिकम्स, इस केस में क्या हो गया ना, ए इक्वल टू माइनस बी. दो
mod of A is equal to mod of B. They are the same, but direction is opposite. Direction is opposite. So in this case, what we will say, वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल टू क्या खड़ा हो जाएगा, वेक्टर A इज देयर एंड वेक्टर B इज, और वेक्टर A इज क्या है, माइनस बी वेक्टर प्लस B वेक्टर, so it becomes 0 वेक्टर. So दोनों जो ऑपोजिट वेक्टर हम ऐड करते हैं, it will give you a null vector or 0 vector. Will give it 0 vector or null vector. Suppose one particle, what I mean in practical sense, suppose a particle move कर रहा था यहाँ से ऐसे ऐसे करके, इसे अपना इनिशियल पोजीशन में आ गया, मान लो यहाँ से स्टार्ट किया था, एनी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम में, मान लो यहाँ पोजीशन यहाँ था, नाउ द डिस्प्लेसमेंट इज हियर, दिस इज द डायरेक्शन, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट वाज देयर, स्टार्टिंग पॉइंट जर्नी स्टार्टिंग हियर. अगर हम इस पाथ को कंसीडर करें, फॉरवर्ड मोशन को, ऑनगोइंग को, so this is displacement OA. When we consider the backward movement, so it will find this is minus d, it is coming back, this particle is coming back to its original position, और इसको हम बोलेंगे OA minus OA equal to 0 and this is a null vector. यानी डिस्प्लेसमेंट इज 0, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 0, यानी उसने डिस्प्लेस y नहीं, एज पर द टर्म्स ऑफ फिजिक्स, दो द डिस्टेंस कुड बी कवर्ड होल पाथ लेंथ, डिस्टेंस कुड बी कवर्ड ऑफ होल पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट, डिस्प्लेसिंग द शॉर्टर डिस्टेंस between the starting journey and final journey. If it is complete journey over here only at the starting position, so it is the 0. So equal vector, null vector, and there are another type of vector हम यूज करते हैं फिजिक्स के अंदर. मान लीजिए एक प्लेन के अंदर कोई भी वेक्टर ऐसे प्ले कर रहा है, पर्टिकुलर एक प्लेन के अंदर एक वेक्टर ऐसे प्ले कर रहा है, we'll come to this, but now we'll see simply इस r वेक्टर के अंदर देखिए, अगर मैं इसको पूछूं कि you are going this way, you are going this way, you are going this way as per this coordinate cartesian plane. अब कोई अगर पूछे कि तुम्हारा with respect to x axis और horizontal कितना आप टाइम के साथ शिफ्ट हो रहे हैं, आपका डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, दिस इज सपोज डिस्प्लेसमेंट, कितना आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हैपनिंग, यानी इस पर्टिकुलर वेक्टर के अंदर देयर आर टू कंपोनेंट्स, व्हाट आई मीन टू से, देयर आर टू कंपोनेंट्स, वन इज 2D के मोशन हमने जैसे देखे, 2D के अंदर हर वक्त एवरी वेक्टर हैज टू कंपोनेंट position of anything. This is x1 y1 maybe, this is x2 y2 maybe, and this is x3 y3 maybe. So every moment, every point, it has two axis respect. अब यानी एक कंपोनेंट वेक्टर का इस तरफ जो दिखेगा, इसी के पर्टिकुलर वेक्टर का अगर आर वेक्टर ऐसे काम कर रहा है, सो पर्टिकुलर एक कंपोनेंट इसकी एक एक्स एक्सिस की तरफ होगा और एक वाई एक्सिस की तरफ. I think you are getting my point very easily ना. एक x एक्सिस की तरफ होगा, एक कंपोनेंट y एक्सिस की तरफ होगा. Suppose this is we say rx vector and this is ry vector. We will come into this on resolution also. कैसे होता है बताओ. अब ये rx वेक्टर को ये मैग्नीट्यूड है, it has also magnitude and value and it has also magnitude. In vector terms हम बोलेंगे this one is equal to rx plus ry.
खाली डायरेक्शन इसको समझने के लिए, मैग्नीट्यूड तो RX है, इनका मैग्नीट्यूड कितना है, RX है, RY है, और इनका मैग्नीट्यूड कितना है, रेजोनेंट का R है। अब इसकी जो हम डायरेक्शन समझाने के लिए x y, इसको हम क्या करते हैं, एक यूनिट वेक्टर, ओनली यूनिट वेक्टर, अब हम उसको डिनोट करते हैं, यूनिट वेक्टर लेते हैं, which is nothing but the value is 1 and x एक्सिस की रेस्पेक्ट में हम उसको i कैप लगा के एक्सप्रेस करते हैं, y एक्सिस की रेस्पेक्ट में उसको j कैप लगाते हैं, और z एक्सिस के अगेंस्ट में उसको k कैप लगाते हैं। ठीक है, और जिसकी वैल्यू है मॉड ऑफ i वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ j वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ k वेक्टर इक्वल टू वैल्यू इज 1, ओनली टू सिग्निफाई द डायरेक्शन। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज RX I कैप और दिस इज मॉड ऑफ दिस वन एंड दिस इज j कैप। विद 3 डायमेंशन विल से कि x y z जो है, अगर हम 3 एक्सिस मान लेते हैं, सो ये अगर वैल्यू है, कोऑर्डिनेट इधर वैल्यू होता है ना, कोऑर्डिनेट तो वैल्यू ही होता है, सो विल से दिस इज x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप r, यानी these are the amplitude and these are the only direction, कि कौन सी डायरेक्शन में ये कितना वैल्यू इस वेक्टर का है। ओके, सो दीज आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर। दो यूनिट वेक्टर, वैल्यू इज 1, ओनली इट इज डिनोटिंग द डायरेक्शन टू डिनोट द वेक्टर्स डायरेक्शन। अब वेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर इज, कैरेक्टरिस्टिक जो दूसरा टॉपिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर्स। अगर कोई वेक्टर है, सपोज वन वेक्टर acting like this, so this is a vector p suppose, और उसके साथ कोई अगर रियल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, if we multiply any real number, suppose this is n is the real number, multiply with the p vector, it will actually give you the np same, यानी वो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाए। इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑल्सो, समझ में आया? इफ वी मल्टीप्लाई दिस वन n इंटू पी, ओके, दिस विल बी np, व्हाट डज इट मीन, यानी इसको अगर मैं p की मैग्नीट्यूड लेके n से मल्टीप्लाई करूं और n इंटू पी वेक्टर को लेके मल्टीप्लाई करूं, दिस इज द सेम। सपोज n इज 2, अगर 2 इंटू पी वेक्टर डबल इक्वल टू 2 पी वेक्टर, यानी क्या है, यानी ये सेम है, दिस मॉड वैल्यू दिस है 2 ऑफ सिंगल मॉड वैल्यू ऑफ दिस वेक्टर of 2 vectors mod this thing. What does it mean? If I suppose you have a pushing force of 10 Newton force you are applying this one. Now I say I multiply the 2, यानी 2 हम ऐसा force apply करेंगे. So again 10 Newton. This is also p bar of p vector. So ये कितना वेक्टर हो गया पर्टिकुलर डायरेक्शन में? This is actually 20. This is the same, is the number line 20 in the same direction. ठीक है, 20 न्यूटन हो गया इफेक्टिव फोर्स, यानी क्या हो गया, यानी 2 इंटू पी बार मॉड, यहाँ पे कितना हो गया था, यहाँ हो गया 2 इंटू पी बार दिस इज द सेम। यानी कोई भी वेक्टर के साथ रियल नंबर अगर मल्टीप्लाई करते हैं
It will just simply multiply them. It is just changing its magnitude with this multiplication number. Direction will be remain same. ठीक है, ये हो गया multiplication. If you multiply the negative number, one more thing here. If you multiply the negative number here, suppose this is the magnitude, this is the p, and this is what does it mean actually? कि मैंने एक उसकी जो डायरेक्शन है, we just make it change. We make it change into -1. What did it mean? It is actually changing its position. All other things magnitude is the same, but it is here now -b. ठीक है? If it is -2, what did it mean? I multiply the 2 here. दो नेगेटिव फोर्स से हम उसको मल्टीप्लाई करें. So it's very simple. Now we'll move वेक्टर की ट्रायंगल को पढ़. दो वेक्टर कोई प्लेन में जब काम करता है, सपोज दीज आर टू वेक्टर्स, इसमें एक ट्रायंगल प्रॉपर्टी फॉलो करता है या पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी. We'll come to the analytic method. I'm just now talking about the graphical methods. All graphical methods. ये सब जितने सारे हमने दिखाए एडिशन, these are all graphical method और resolution. Actual calculation analytic method में सीखेंगे. जैसे मैंने बोला कि दोनों के एंगल अगर बीच में थीटा हो, then we have to do simply. You cannot just simply addition this one, the magnitude. It is not correct. It is not correct. It is the only geometrically expression और graphical expression. Graphical expression. अब हम कह रहे हैं कि ये दोनों जो है, अगर कोई ऐसे वेक्टर काम करता है, वेक्टर के अंदर हमने देखा था, देखिए दो वेक्टर यहाँ पे काम कर रहा है, एक वेक्टर ऐसे काम कर रहा है, एक वेक्टर मान लो ऐसे काम कर रहा है. दिस इज Q एंड दिस इज P. हमने देखा था कि अगर डायरेक्शन सेम हो एंड मैग्नीट्यूड सेम हो, वेक्टर इज द सेम. वेक्टर इज द सेम, पैरेलल वेक्टर या इक्वल वेक्टर बोलते हैं. यानी हम ऐसा कोई वेक्टर सेम डायरेक्शन में, मान लो इसी पॉइंट से हम लेते हैं, एक वेक्टर को इसी पॉइंट से लेते हैं या यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं कि भैया ये वेक्टर है, इसकी पैरेलल लेना पड़ेगा. ऑफ कोर्स दिस शुड बी पैरेलल टू दिस. इफ आई वांट टू कंसीडर दिस इज माय p वेक्टर, सो ये दोनों को वेक्टर अब मैंने ले लिया सेम डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड आल्सो सेम. सो नाउ इट बिकम्स माय p वेक्टर. मैं ऐसे क्यों क्या बता रहा हूँ? एक ट्रायंगल लॉ जो फॉलो करता है वेक्टर, उसके लिए हम पहले ट्रायंगल बताएंगे. तो ट्रायंगल जो है, नाउ देखिए इसकी हेड हो गया, इस वेक्टर की टेल हो गया. अब हेड टेल जब ज्वाइन कर लिया, फिर हम क्या करेंगे, इसको बोलते हैं हेड एंड टेल. और इसके बाद जो इसकी फाइनल वेक्टर बनेगा कि ये वेक्टर इधर काम कर रहा है, एक वेक्टर दूसरा इधर काम कर रहा है, तो उसकी फाइनल जो है इफेक्टिव रिजल्टेंट वेक्टर जो है, यानी मान लीजिए पहले यहाँ से पॉइंट, इस पॉइंट से यहाँ गया था, फिर अगला इस पॉइंट से यहाँ गया था, तो इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहीं होगा. सो दी नेट और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट दिस इज, ठीक है, दिस इज P, दिस इज Q एंड से दिस इज R. नाउ R इज क्या हो गया, हमने लास्ट टाइम में दिखाया था आपको, P प्लस Q. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में आपको दिखाया था कि दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस इज द फ्रॉम द 0 पॉइंट इफ यू कंसीडर, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट 0 0. अब देखिए इस केस में जो वेक्टर है, ये हम ग्राफिकली बता रहे हैं, अभी बोल रहा हूँ ये ग्राफिकली बता रहे हैं. यू कैन नॉट सिंपली ऐड दिस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टू वेक्टर्स. अब इसको मान लो P की जगह पे हम Q लिख देते हैं. मान लीजिए अब मैंने दो वेक्टर लिया था, अब मैं तीसरी वेक्टर लेता हूँ. तीन वेक्टर से शुरू करता हूँ. एक वेक्टर ऐसा, यानी सपोज डिस्प्लेसमेंट इनिशियली वाज दिस, नेक्स्ट दिस, देन दिस. ओके, दिस इज A, B
and C. Now, what is the effective displacement from this 0, 0 point of this particles or object? तो क्या करना पड़ेगा? Now it will just simply here to here. This is the actual displacement and the direction of the object finally. If I denoted this one R, so what is R actually? It will be addition of all vectors. Graphically, again I am repeating, this is graphically. इसकी एक्चुअल अरिथमेटिक कैसे आएगा वो हम आपको विद डायरेक्शन दिखाएंगे, ठीक है? तो दिस इज नाउ इफ यू सी, अब मान लो पहले मैंने ये दोनों वेक्टर को, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को इस पोजीशन में डिफाइन किया, तो यहाँ पे ये दोनों की अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पहले ले लेता, सो इट इज द डिस्प्लेसमेंट समवेयर एल्स इज हियर. सो ये जो वेक्टर है, सपोज आई कैन डिफाइन दिस ऑन r1 वेक्टर, तो इसमें r1 क्या हो जाता है ना, दिस इज वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ठीक है? r1 हो जाता है. अगर मैं ये दोनों डिस्प्लेसमेंट को खाली कंसीडर करता, देन दिस r1 इज इक्वल टू एक्चुअली दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, दिस डिस्प्लेसमेंट एंड दिस डिस्प्लेसमेंट. सो नाउ देखिए ये r1 है, नाउ r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, r1 वेक्टर प्लस c वेक्टर. If now it is the r1, अगर इसको कंसीडर करते हैं तो दिस इज r1, then this is c, so this is r equal to r1 plus c. यानी r1 क्या था, यानी a बार प्लस b बार प्लस c बार, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर. यानी आप क्या कहने का मतलब कि पहले, यानी देखिए ऑल द केसेस दिस इज r वेक्टर्स ओनली, सो a प्लस b वेक्टर plus c vector. It could be initially first you add a vector plus b vector, then you add c vector, or you can change the combination of a vector b plus c vector like this, ठीक है? So these vectors initially you add this and this. So these are called commutative property. Commutative. So it is obeying the commutative property. जैसे हमने पहले पढ़ा था कि भैया नंबर्स जो है वो commutative property फॉलो करता है, कि जैसे कोई नंबर है 10 इक्वल टू 2 प्लस 5 प्लस 3, दिस इज 10, सो यू कैन राइट 2 प्लस 5 फर्स्ट और 3 लाइक दिस, और 2 प्लस 3 प्लस 5 पहले, देन यू ऐड 5, और यू कैन राइट 2 प्लस 5 प्लस 3. सो दिस नंबर्स actually following the commutative property. Similarly this vector also graphically, of course graphically, if you consider the direction you have to go with the analytical approach of theta, considering the angle between theta, this theta, then you will get this value. So commutative property ये follow करता है, एडिशन के अंदर, वेक्टर एडिशन के अंदर commutative property follow करता है. ये ट्रेंगल है. यहाँ पे एक तो ट्रेंगल लॉ बता दिया, पैरेललोग्राम लॉ पे देख लेते हैं. पैरेललोग्राम में इसी वेक्टर को देखिए, ये वेक्टर दोनों था हमारे केस में, एक वेक्टर ये था, एक वेक्टर ये था. पैरेललोग्राम के केस में हेड टू टेल की जगह पे हम टेल टू टेल या हेड टू हेड कंसीडर करके चलते हैं. यहाँ पे हमने बनाया टेल टू टेल. हेड टू हेड कैसा होगा ना, हेड टू हेड ऐसा होगा कि भाई एक इधर गया और दूसरा किधर रहेगा, इधर रहेगा, ठीक है, इधर रहेगा, ऐसे भी कर सकते हो. तो हेड टू हेड या टेल टू टेल, तो हमारे केस में हमने टेल टू टेल करेंगे. हेड टू हेड करने में हमारा अंडरस्टैंडिंग में कंफ्यूजन रहेगा, कर सकते हैं. नाउ फॉर दिस, फॉर पैरेललोग्राम, यू वांट टू पैरेललोग्राम दिस, सो यू जस्ट दिस व्हाट इज डूइंग, इसकी पैरेलल शिफ्टिंग कर रहे हैं, बोथ आर द सेम वेक्टर, एंड दिस पैरेलल शिफ्टिंग इसको कर रहे हैं, पी वेक्टर को ही है, इसको पी वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्टिंग यहाँ कर रहे हैं. सो the ultimate displacement will be this r vector. ये पैरेललोग्राम के अंदर हम इस तरह की सॉल्व करें, आगे और दिखाते हैं कि पैरेललोग्राम रूल में कैसे वेक्टर काम करता है या चलता है, कैसे उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है. दोनों पी क्यू टेल टू टेल किया, फिर इसकी जो डिवाइडर है उसको हम ज्वाइन कर दिया लास्ट पॉइंट के साथ. सो दिस विल बी
10 to 10 एंड इज द रिजल्ट। ठीक है, तो इसमें जो है आपने देखा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है वेक्टर। अब वेक्टर की जो सब्ट्रैक्शन है, नाउ वी हैव जस्ट गॉन फॉर द एडिशन ऑफ दिस वेक्टर्स। अब वेक्टर की कोई सब्ट्रैक्शन, मान लीजिए कि मैंने कोई दो वेक्टर दिया, देन दे सेड सब्ट्रैक्ट दिस वेक्टर्स। एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है, चलो एक डायरेक्शन हो गया, इक्वल वेक्टर हो गया, लेट्स हैव दिस वन एंड दिस इज p, दिस इज q। सो सब्ट्रैक्ट दिस वेक्टर p एंड q। उस केस में हम क्या करेंगे? देखिए वेक्टर के अंदर सब्ट्रैक्शन, देयर इज नो सब्ट्रैक्शन, ओनली व्हाट यू थिंक। मान लीजिए इन्होंने बोला कि आप मेरे को भैया एक रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए जहां पे p माइनस q सब्ट्रैक्शन होता है, यानी q ऑपोजिटली काम करता है। देखिए सब्ट्रैक्ट मैंने तो बोल दिया, मतलब एक्चुअली q इज डायरेक्शन इज ऑपोजिट एज वी सेड इट इज सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मींस इट इज गोइंग अगेंस्ट द एक्चुअल q व्हाट यू आर सेइंग। सो व्हाट वी विल डू इज, देखिए अगर मैं इनिशियली इसको ड्राइंग करता तो ट्रायंगल लॉ या उसमें पैरेललोग्राम लॉ के अंदर, तो देखिए यहाँ पे पहले मैंने ऐसे लेता एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर ऐसे ले लेता, ठीक है, दिस बिकम्स नाउ p, दिस बिकम्स नाउ q। अब p माइनस q सब्ट्रैक्शन करना है, यानी q विल बी समवेयर दिस साइड, सिमिलर बट ऑपोजिट। हमने बोला था ना, ऑपोजिट डायरेक्शन बट द सेम मैग्नीट्यूड विल कॉल द नल वेक्टर। इफ एट दिस इज नल वेक्टर एंड ऑपोजिट वेक्टर किसका है, जस्ट ओनली साइन नेगेटिव एंड दिस विल बी एक्स साइड। अब ये वेक्टर दोनों हो गया माइनस क्यू वेक्टर। अब माइनस क्यू वेक्टर एंड माइनस पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर के अंदर, अब माइनस क्यू वेक्टर के अंदर अब आप ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हो, फिर उसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी होगा, माइनस एडिशन और क्यू सब्ट्रैक्शन, यू कैन से लाइक दिस। सो अब इसके अंदर अब मैं पैरेलल लॉ ये लगा लेता हूँ, पैरेललोग्राम लॉ लगा लेता हूँ, ठीक है। सो दिस विल बी this will be resultant here. So the resultant vector is here, it is nothing but the resultant vector is now this resultant vector is actually p and minus q, or you can say this is p minus q vector on a subtraction। अब देखिए क्या हम ऐसे लिख सकते हैं p प्लस q, p माइनस q वेक्टर, p प्लस माइनस q वेक्टर इक्वल टू q प्लस p वेक्टर, लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। और माइनस q वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, बिकॉज इट मीन्स द डायरेक्शन। अगर माइनस p होगा देन दिस विल बी हियर, सॉरी ऐसा होता माइनस पी, दिस इज द माइनस पी। अगर माइनस पी ऐसे होता तो रिजल्टेंट क्या होता, ना रिजल्टेंट विल कम, दिस इज क्यू, उस टाइम में प्लस होता, उस टाइम में हमने क्या बोला था, क्यू विल बी प्लस, क्यू प्लस किधर है, क्यू प्लस इधर था। सो रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट इधर होगा, ठीक है ना, रिजल्टेंट इधर होगा। क्या दोनों सेम है, ऑपोजिट है। सो जो सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, नो कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है सब्ट्रैक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। नेक्स्ट जो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर रिजोल्यूशन विचारें। रिजोल्यूशन वेक्टर में थोड़ा सा टच किया था शुरू में, दोबारा आपको बढ़िया से समझा देता हूँ, एक बार समझा देता हूँ। Resolution of vector, what does it mean?
कि वेक्टर को रिजोल्यूट करना, रिजोल्यूट मीन्स एक्चुअली डिवाइड करना है इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। हम सारे हम 2D में बात कर रहे हैं, 3D में भी सेम ही होगा, जैसे मैं साफ साफ बोलते जा रहा था। 2D के मान लो कोई वेक्टर ऐसे है, अगेन आई सेड यू रिजोल्यूशन वेक्टर, कोई भी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर मान लो ये है, दिस इज आर एंड इट इज making angle of theta towards the x-axis. Okay. Now the resolution of this, the component, if it is rx, इसका component अगर इस तरह की है और इसका ry है, ठीक है, इस डायरेक्शन में इसका ry है और इसका rx है, ठीक है। तो r इज इक्वल टू, पहले तो हम ये लिख देंगे rx प्लस ry ग्राफिकल में। अगर ये थीटा एंगल करके रखा हुआ है, अब हम इसको मैग्नीट्यूड के साथ इस ट्रायंगल को ड्राइंग करें तो दिस अमाउंट विल बी, दिस इज द y एक्चुअली, दिस इज आर वाई, यानी इसकी जो पोजीशन है दिस इज आर एक्स एंड आर वाई, जो कोऑर्डिनेट होगा आर एक्स एंड आर वाई, यानी दिस इज आर वाई एंड दिस इज आर एक्स, ठीक है। तो इस केस में अब देखिए आर वाई क्या है, आर वाई एक्चुअली दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर वाई, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वाई इज नॉट द डायरेक्शन, आर मैग्नीट्यूड इनटू दिस इज, ये हो गया साइन थीटा, बिकॉज साइन थीटा इक्वल टू कितना है, साइन थीटा इज द दिस बाई दिस, साइन थीटा इक्वल टू हाइट बाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज पी बाई एच, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में पी बाई एच। सिमिलरली आर एक्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू कॉस थीटा। सो देखिए एक ही वेक्टर के अंदर दो कंपोनेंट हमने डिवाइड कर लिया, एक आर एक्स और एक आर वाई, आर एक्स और आर वाई कंपोनेंट थीटा होगा तो इसकी कॉस थीटा साइन थीटा, दीज आर कॉल्ड द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। एक वेक्टर को, यानी मान लीजिए एक वेक्टर एक पर्टिकुलर फोर्स, लेट मी विद अ फोर्स, अब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सो सपोज पुलिंग और पुशिंग ऑन ऑब्जेक्ट, सो इट इज एक्चुअली, सपोज मैं कोई बॉल्स के ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं पुश कर रहा हूँ, सो व्हाट इज गोइंग ऑन एक्चुअली, इट इज सेंटर दिस वन, सो ये एक तो फोर्स इधर काम कर रहा है और एक फोर्स इसको इधर काम कर रहा है, डायरेक्शन सेम, resultant in this one, so this will be rx and this will be ry, minus, here it is minus, negative point, this one, यानी उसको और उसकी वेट बढ़ा देता है, इसलिए बोलते हैं उसी में वेट बढ़ जाता है और वेट उसके साथ रहता है, ठीक है। सो इसकी एक्चुअली हमने कंपोनेंट को डिवाइड कर दी, ओके। अब मान लीजिए दो वेक्टर होता, अब इसमें मैं एक वेक्टर और लेता हूं, उस केस में क्या होता, रिजोल्यूशन करके भी हम वेक्टर के एडिशन कर सकते हैं, फोर्स, यू नो, रोइंग ऑफ स्ट्रीम, टू वेक्टर्स वर्किंग ऑन यू, लाइक यू नो रेन एंड दिस ऑल एक्टिविटीज, मान लो रेन गिर रहा है, रेल ऐसे गिर रहा है और आप ऐसे चल रहे हैं, तो कैसे होगा, ठीक है। तो कैसे होगा ना, आपको दिखेगा रेन ऐसे जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, पीछे से आ रहा है। तो इस केस में किस डायरेक्शन में जा रहा है, कितने स्पीड में जा रहा है, उस हिसाब से रेन की स्पीड के हिसाब से आपको छतरी को भी उसी हिसाब से एंगल रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए एक वेक्टर अगर मैं कोई और आर लेता, कोई और वेक्टर लेता, सपोज दिस इज अनदर वेक्टर, दिस इज अनदर वेक्टर, मान लो पी है, सो इस केस में यहाँ पे भी जो कंपोनेंट होता, सो दिस विल बी पी वाई एंड दिस विल बी पी एक्स, ठीक है, पी वाई एंड पी एक्स। और इस केस में हम क्या लिखते हैं, पी बार इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पी बार इक्वल टू पी एक्स मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ पी एंड मॉड ऑफ पी वाई, इसको हम लिख सकते थे, ठीक है। अब दोनों वेक्टर मान लो एक ही प्लेन में काम कर रहा है, सो अगर हम कंपोनेंट को ब्रेक करेंगे तो इसकी जो रिजल्टेंट होगा, अब ये दोनों पी एंड क्यू की जो रिजल्टेंट होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि दोनों के रिजल्टेंट वेक्टर p प्लस वेक्टर r
will be actually rx vector plus ry vector plus px vector plus py vector। अब देखिए rx और px जो है ये बेसिकली यूनिट डायरेक्शन x एक्सिस के अंदर है, तो ये दोनों सिंपली ऐड हो जाएंगे एंड ये y एक्सिस की तरफ है, ये सिंपली ऐड हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा बिकॉज डायरेक्शन इज द सेम। अब यहाँ पे रिजोल्यूशन वेक्टर में एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट वेक्टर भी हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने बोला कि भाई ये जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर एक्स, अगर हम मैग्नीट्यूड खाली आर एक्स लेते हैं, द मैग्नीट्यूड इज आर एक्स, सो आई विल एड आई कैप यानी डायरेक्शन इन द एक्स एंड आर वाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर वाई यानी आर वाई का ओनली वैल्यू एंड दिस विल बी जे कैप। ऐसे भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड टेन थीटा इज, टेन थीटा हमने कितना देखा, दिस इज आर वाई एंड आर एक्स, दिस द मैग्नीट्यूड ओनली। टेन थीटा ये हो गया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में हम इस तरह की एंगल लेके अलग अलग कर सकते हैं। ओके, नाउ we'll move to और क्या रह गया, एनालिटिकल मेथड में फाइनली हम पहुंच गए। एनालिटिकल मेथड में वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट विल आपको वेक्टर के जितने सारे साम है इन फ्यूचर ऑल्सो, एवरी इन मैक्रो फिजिक्स के अंदर जितना जितना आपका एरियास है, फोर्स है, टॉर्क है, ऑल दिस थिंग्स विल नीड द वेक्टर्स। एवरी वेक्टर इट्स नीड्स अ डायरेक्शन। स्क्रू को आप घुमा रहे हैं, दो फोर्स को काम कर रहे हैं, ठीक है। अब एक तो एक रेडियस वेक्टर स्क्रू, मान लो इसके अंदर स्क्रू है, आपने स्पैनर लिया फिर उसको घुमा रहे हैं, सो दिस इज द रेडियस वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड योर फोर्स वेक्टर एंड इसके एक्शन ऐसे हो रहा है तो कितना टॉर्क जा रहा है, एवरीथिंग एवरीवेयर यू विल फाइंड फॉर डिफरेंट टू फोर्सेस उसके इफेक्टिवनेस क्या आएगा। मान लो आप जैसे मैंने बोला कि भाई रेन ऊपर से गिर रहा है, कार जा रहा है, तो आपको कैसे दिखेगा, पीछे की तरफ दिखेगा रेन, आगे की तरफ आएगा, कितना एंगल करना है, तो दीज आर ऑल यूजफुल एरियाज वेयर यू कैन अप्लाई दिस एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर्स। अब हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे एनालिटिकल मेथड, एनालिसिस ऑफ मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के अंदर हम देखेंगे दो, मान लीजिए देयर आर टू वेक्टर्स, this vector p and this vector q, ठीक है। सपोज दिस इज वेक्टर p and this is vector q and origin point, reference of origin or observer point is o, observer point is o। अब इसको जब एडिशन करेंगे व्हाट विल डू, सो ये एक पैरेलल शिफ्टिंग कर लिया मैंने, ऐसे एक पैरेललोग्राम बना लिया एंड इसकी पैरेललोग्राम शिफ्टिंग करके एक पैरेललोग्राम यहाँ बना लिया, यानी एक लाइन और लगा ली। सो दिस विल बी द डिवाइडर, this will be the divider here and this will be the resultant of these vectors। अब इसके हम नाम देते हैं, this is O, this is A, this is B, this is C। Now for analysis method we will just extend this one and drop some perpendicular over this। अगर ये दो वेक्टर आपस में एंगल थीटा बना रहे थे और बना के एक्टिंग कर रहे थे, इफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज थीटा, vector is theta, so these are parallel, this is also parallel, so this will be also theta, this will be also theta, ठीक है। अब देखिए, अब हम ट्रायंगल एनालिसिस में चलेंगे, ज्योमेट्रिकल एनालिसिस में।
फ्रॉम ट्रिंगल हम ट्रिंगल ले लेंगे डायगोनल ओ बी एंड दिस इज डी, सो ओ बी डी ट्रिंगल ले लेते हैं। फ्रॉम ट्रिंगल ओ बी डी, फ्रॉम ट्रिंगल ओ बी डी, देखिए बी डी पार्ट क्या है ना, बी डी ओवर दिस वन ओ बी इक्वल टू क्या हो गया ये, दिस इज साइन थीटा, बी डी ओवर ए बी इज द साइन थीटा, yes or no? So this is sin theta. और बी डी इक्वल टू ओ बी साइन थीटा, that is r mod sin theta. We are taking the only the magnitude of this vector. So बी डी is r sin theta. तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पे, बी डी is r magnitude sin theta. Okay, r sin theta. Similarly, so BD is r sin theta. From this, BD equal to magnitude of r, then sin theta. Now, this OD from triangle same, OD equal to क्या है ना, this is OC plus CD. OC is how much? This is Q, vector Q plus CD. CD क्या है? अब देखिए, if it is P, we are just shifting the parallel. This one, this is also P. This is also vector P. ठीक है, तो ये जो वेक्टर P है, so this will be how much? This is P, so this is P cos theta, because CD by P from this triangle BCD, from triangle BCD, from triangle BCD, what equal to CD equal to CD by P equal to, it is cos theta, base by height, base by hypotenuse. So for CD is equal to here P cos theta, magnitude of P, and this is the cos theta. Okay, vector P का magnitude and cos theta, and BD was actually, sorry, this is P sin theta, this is P sin theta, because this is P, this is not, this is P, this is P sin theta if it is taking the P from BCD, we have taken round triangle from BCD, BD equal to P sin theta, because R is different one, R नहीं होगा यहाँ पे, P होगा, क्योंकि R का थीटा यहाँ पे पूरा है, ठीक है। So this is from BCD triangle, BD equal to P sin theta, BD equal to, from this triangle is the BD equal to P sin theta, and triangle BCD, this is CD equal to this, ठीक है, CD equal to from this triangle, and OD equal to OC plus CD, and we are now considering total triangle OBD. Now we consider from total triangle OBD, तो क्या मिल गया, एक तो BD इक्वल टू क्या मिल गया ना, BD इक्वल टू P sin theta, and OD equal to Q plus, of course this is again the magnitude, खाली magnitude पार्ट को हम ले रहे हैं, और P cos theta, ठीक है। अब देखिए R square from triangle this one OBD, अब OBD triangle के अंदर R square equal to this one OD square plus BD square, Pythagoras theorem, this one equal to this square plus this square. So OD कितना आया, OD is
Q plus mod of Q plus mod of P cos theta whole square plus BD is this one, BD is this one, P sin theta whole square. ओनली मैग्नीट्यूड पार्ट वी आर टेकिंग, ठीक है। डायरेक्शन तो थीटा में कवर हो गया, ओनली मैग्नीट्यूड पार्ट हम ले रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए फिर, अब इसको कैलकुलेट करें, आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq प्लस 2pq साइन थीटा प्लस पी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज cos स्क्वायर थीटा, दिस इज cos थीटा, नो, सो दिस इज cos स्क्वायर थीटा, सॉरी दिस इज cos थीटा एंड दिस इज p साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। p q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2pq cos थीटा देन p स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, so this is coming, now p common, so this is cos स्क्वायर थीटा plus sin स्क्वायर थीटा and this is q square, then this is 2pq cos theta, so this is nothing but the p cos square theta p square theta equal to sin square theta cos square theta is 1, so p square plus q square plus 2pq cos theta, so this is r square। अब मैं मैग्नीट्यूड की केस में बार हटा ही लिया हूँ, सो r इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, so this is the एडिशन फॉर्मूला ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर अगर थीटा एंगल में है तो उसकी सम वैल्यू मॉड ऑफ दिस आर वेक्टर विल बी कितना होगा, रूट ऑफ पी स्क्वायर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर होल रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दोनों का 2pq एंड cos थीटा इज द एडिशन क्वांटिटी ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है। अब हम बोलते हैं जो रिजल्टेंट वेक्टर है, नाउ वी कैन कंसीडर अनदर वन, सो ये समझ में आ गया, ठीक है। r इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ होल रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ठीक है। अब अगर हम बोलते हैं कि भाई जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो अगर अल्फा एंगल करता है x एक्सिस के साथ, ये बड़ी x एक्सिस, ठीक है ना, ये x एक्सिस के साथ अगर रिजल्टेंट वेक्टर अगर ये अल्फा एंगल करता है, तो ये अल्फा एंगल जो है ये कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। अल्फा एंगल हम ऐसे मेजर कर लेंगे, देखिए टेन अल्फा इक्वल टू क्या है ना, दिस बाई दिस, दिस इज BD ओवर दिस इज OD। BD हम क्या देखे थे, दिस इज P sin थीटा mod of P sin theta over, and this is OC, this is Q mod of Q value, and this is P sin theta, P cos theta। क्यों cos थीटा पार्ट है ये, क्योंकि ये इधर का थीटा का cos कंपोनेंट है, so this is P cos theta। So the tan alpha equal to is P mod of P sin theta over Q plus P sin theta। So hope you have understand these things, you know। इसके बाद हम कुछ आपको साम भी करा देंगे वेक्टर के एनालिटिकल मेथड में,
जो सम है। अगर ये नेगेटिव होता क्या करते, कुछ नहीं करते, सिंपल। अगर ये नेगेटिव होता, लेट्स हैव द थिंग ऑन इफ इट इज नेगेटिव, सपोज दिस इज ए क्यू नेगेटिव, अब मैं सब्ट्रैक्शन के केस में क्या करता, सब्ट्रैक्शन हो जाता। तो सब्ट्रैक्शन केस में हमने देखा था अगर ये सब्ट्रैक्शन होता यानी क्यू नेगेटिव होता, अब इसी को क्यू यानी मान लो क्यू इधर था, इसको बोलते हैं हम कोई और क्यू के साथ नेगेटिव के सब्ट्रैक्शन करो, यानी एक्चुअल क्यू यहाँ पे था तो फिर सब्ट्रैक्शन करते तो इधर ले लेते, ठीक है। उन दैट केस क्या होता, जो फॉर्मूला हमने देखा था कि हमने जो हमारा फॉर्मूला आया था आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, नाउ पी मॉड स्क्वायर प्लस क्यू माइनस स्क्वायर प्लस 2p into q, q is the minus one here, is the mod, okay. So this is 2pq and cos theta, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, ये तो माइनस तो बराबर हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, बट यहाँ पे माइनस 2pq cos theta हो जाएगा, यानी उस केस में ये माइनस हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। और इन दैट केस इसको भी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा अगर सब्ट्रैक्शन होता, ठीक है। सो अब वेक्टर की लगभग काफ़ी आइडिया हो गया। प्रैक्टिकल एग्जांपल दो चार हम थोड़ी सी कोट कर देते हैं, फिर विल डू द मैथ ऑन नेक्स्ट सेशन। वेक्टर के दो टर्म है, मान लीजिए एक बॉल ड्रॉप कर रहा था, या लेट्स से दिस one bar is flying this direction or this direction, suppose bar is flying this direction and wind is pushing him this direction. So actual bar की मूवमेंट कैसे होगा, मान लो दिस इज 10 किलोमीटर पर आवर, बार फ्लो कर रहा है एंड एयर फ्लो इज 5 किलोमीटर पर आवर, bar is flying 10 kilometer per hour flying and this is air is 5 kilometer per hour। अब क्या करेंगे हम इसको ऐसे ले लेंगे। अब जो एंगल ऑफ विंड है, एंगल ऑफ टेक ऑफ है, सपोज दिस इज 30 डिग्री, ये बार 30 डिग्री एंगल में मूवने की कोशिश कर रहा है, तो दिस इज 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा उसके डायगोनल रिजल्टेंट। अब जो रिजल्टेंट है हम क्या देखे थे कि रिजल्टेंट जो है दिस इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस दिस वन प्लस 2 इंटू पी इंटू क्यू इंटू कॉस 30, ओके। सो दिस इज एक्चुअली कमिंग, सो दिस इज 125 प्लस ये कितना हो गया 100 देन √3/2, ये होगा वैल्यू जो भी है निकलेगा। या तो cos 60 दे दो, चलो cos 60 दे दो, ये तो लीजिए टू कैलकुलेट, सो दिस विल बी हाफ, cos 60 हो जाएगा तो हाफ है, so this is 50, so 175, so this is 5√7, ये अल्टीमेटली उसकी स्पीड होगी, ठीक है। यस, अब देखिए यानी 10 में जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन जाने नहीं दे रहा है, उसको फ्लैट कर रहा है इसके एडिशन, ठीक है ना। यस 100, then this is 100 at 25, then 100 is 50, 175, yeah this is correct। अब इसकी जो ये कितना एंगल में फिर रिजल्टेंट जो है अल्टीमेटली कितना एंगल में उड़ पाएगा, दिस थीटा, सो दिस थीटा इज सो 10 थीटा हमने देखा था कि दिस इज पी साइन थीटा, दिस इज पी साइन थीटा 10 साइन 60 ओवर क्यू प्लस पी cos 60, this will be the angle, so this is
10 root 3 by 2 over 5 10 into half. So this is 10 root 3 by 2 and this is 10. So 10 this is root 3 by 2. So tan theta is root 3 by 2. Tan theta equal to root 3 by 2 or theta equal to tan inverse root 3 by 2. root 3 by 2 यानी 45 से थोड़ा सा ज़्यादा है, मोर देन 45 लेस देन 60. आप टेबल चेक कर लेना. So this type of problem is the numericals. We will come back to with you some more numericals from exercise and board exam. So for today this is sufficient for vector. I think if you have any queries or doubt, you can post your comment in comment box.